Yes, good morning, my dear students. Beta, how are you? Fine. Okay, very good, beta. Right now that today we'll discuss about the differential equation of 12th CBSE. I mean जो 12th CBSE का टॉपिक है, my dear students, अपन बात करेंगे differential equations की. देखिए my dear, चैप्टर जो आपका 9 है, that is differential equations, यानी कि differential equations. So what is the differential equation, my dear, and how can define the differential equation? I mean 12 CBSE students से बात करें my dear friends, so please watch here 12 CBSE chapter 9 differential equation. So what is the differential equation? I mean differential equations क्या होती है and how can explain the differential equation? Differential that it means the coefficient of derivative equation that where we have given the symbol of equation, where we have given the symbol of equation. तो for example देखिए my dear, so please let suppose that y equal to f of x है, I mean y equal to my dear f of x है, तो that is dy upon dx. Suppose that is dy upon dx, यानी f dash x, f dash x. I mean that is my dear first order derivative. That is first order derivative. Is that clear? First order derivative. Second, suppose that इसका again differentiate करते हैं my dear. Suppose that again differentiate with respect to x. Again differentiate with respect to x. So right now that is I mean d2y upon dx2. So that is f double dash x. I mean d2y upon dx2 equal to f double dash x. So that is second order derivative, my dear. So that is second order derivative. ये लो भैया second order derivative. आई मीन इसको तो बोलते हैं फर्स्ट टाइम अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो माय डियर, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर. आई मीन सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं अगेन, दैट इज नोन एज द सेकंड ऑर्डर. आई मीन शॉर्ट एंड स्वीट. सपोज दैट आप अगेन डिफरेंशिएट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. आई मीन दैट इज d3y आई मीन dx3. तो दैट इज f ट्रिपल डेज x. तो दैट इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट आपको मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंस बनता है, जो रिजल्ट आने की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैं डिफाइन करेंगे अपन, उसमें अप्लाई होंगे कि दैट इज y1 या y डैश दैट इज dy upon dx. या फिर इसको यूं लिखते हैं माय डियर y2 एंड y डबल डैश दैट इज d2y upon dx2. या फिर यूं लिखते बेटा y ट्रिपल डैश या y3 and y triple dash my dear that is d3y upon dx3 हो गया. Okay, so that is known as the third order derivative, that is second order derivative, or that is first order derivative. Is that clear? So right now we'll define the differential equation. कि what is the differential equation? Okay भैया, तो differential equation that is it means so that it is known the coefficient of derivative, that is also coefficient of derivative, or that is known as the also coefficient of derivative. यानी कि ये तो थर्ड ऑर्डर का है, that is second order और ये थर्ड और फर्स्ट ऑर्डर. तो देखो भैया इक्वेशंस में क्या होता है कि when we have given the symbol of equal in algebraic, I mean in any coefficient of derivative, in coefficient of derivative. देखो भैया, so what is the differential equation? Yes, what is the differential equation? तो इसकी बात बता रहे अपन कि what is the differential equations. Yes, differential equation कि if we have given the equal symbol in any coefficient of derivative, so suppose that कि differential equations if we have given symbol of equal if we have given the symbol of equal in any coefficient of derivative and there are including constant and variable.
there are including the constant and variables, then it known as then it is called differential equation. I mean, if we have given the symbol of equal in any coefficient of derivative and there are including of constant and variables, then it is called differential equation. So my dear, for example देखिए please. I mean, अगर आपके पास कोई एक ऐसा कोई सिंबल हो, I mean इक्वल का सिंबल किसी कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव की फॉर्म में इंक्लूड हो, I mean dy upon dx equal to this आए या 2 आए 3, but there are including the constant and variables, यानी कि भैया कांस्टेंट और जो वेरिएबल्स है एंड विद कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव कि अगर फॉर्म में एक साथ आपके पास dy upon dx के साथ इक्वल गिवन हो, तो दैट इज फॉर एग्जांपल d2y upon dx2 प्लस के 3 डॉट dy upon dx and plus के 4y और इक्वल टू 0, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन. या फिर एग्जांपल सेकंड में देखते हुए देखिए आप प्लीज कि 4 डॉट dy upon dx and plus के 2x इक्वल टू माय डियर 0, इस टाइप के. यानी कि भैया जहां dy upon dx पे आई मीन कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव विद द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर इंक्लूडिंग द विद द सिंबल ऑफ इक्वल, देन इट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके माय डियर, यस. सो नेक्स्ट बात कर रहे हैं. अब देखिएगा डिग्री एंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि व्हाट इज द ऑर्डर एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. यस, नेक्स्ट टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स. यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज द डिग्री, आई मीन order and degree of differential equations. Order and degree of differential equation कि what is the order and what is the degree कि order and degree of differential equation. So please watch here. देखिए आप order. So right, what is the order? Case first. Just I am telling you about the order, my dear friends. Order. What is the order? Order क्या होता है कि suppose that order का मतलब होता है कि right now that we are applying the coefficient of derivative. I mean we have given the any function. Suppose that आपके पास क्या है function given है और उस function का आप जितने टाइम आप डेरिवेटिव कर रहे हो, फर्स्ट टाइम करो तो ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड टाइम अप्लाई टू सेकंड ऑर्डर, थर्ड टाइम डेरिवेटिव करो तो थर्ड. यानी कि भैया suppose that let y equal to f of x है, तो now differentiate with respect of that is dy upon dx. So right now that is at this x. इसका बोला जाए तो my dear that is first order. What is this? First order. अगर मान लीजिए suppose that इसका आप वापस अगेन कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो that is d2y upon dx2. That is f double dash x. So that is second order my dear. So what will you say? Second order derivative. Okay my dear? Second order derivative. लेकिन then we have to find out the order and degree of any differential equation. तो differential equations की आपको order find करना है, तो भैया देखिए आप yes कि भैया किसी भी differential जैसे s because example दे रहा हूँ right now d2y upon dx2 and plus के 3 dot dy upon dx and plus के x equal to 0. So right now that is we have given any differential equation my dear. We have given the any differential equation. So in this differential equation then we have got तो already the double time derivative. Highest maximum to maximum 2 time derivative कर रखा है इसका. Maximum to maximum 2 time. देखो भैया in which any differential equation then we have given maximum to maximum coefficient of derivative. Maximum to maximum coefficient of derivative. What we have given? क्या given है? Then it is called the order of differential equation. यानी कि भैया इसका जो इस differential equation का जो order होगा, इस differential equation का जो my dear order होगा, वो कितना होगा भैया 2. इस differential equation का order कितना होगा बेटा 2 होगा.
यानी कि क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट बोले तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने टाइम डेरिवेटिव कर रहा है, 2 टाइम, राइट ऑफ दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भैया ऑर्डर को मैं डिफाइन कर रहा हूं, यानी कि भैया देखिए प्लीज, व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर, ओके भैया। तो हाईएस्ट टाइम या मैक्सिमम टाइम्स, हाउ मेनी भैया, मैक्सिमम टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या in any differential equation that we have the highest coefficient of derivative, या इसको यूं भी लिखते बेटा, that is highest coefficient of derivative, highest coefficient of derivative, यानी कि highest coefficient of derivative कि किसी भी differential equation maximum to maximum highest coefficient of derivative, that it means कि in which differential equation right now we have given maximum to maximum, कितने टाइम आपको डेरिवेटिव करके दे रखा है, कितने टाइम उसका ऑर्डर फाइंड कर रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन कर रखा है, डेरिवेटिव कर रखा है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव देखना है कि मैक्सिमम देखना है कि भैया जैसे dy अपॉन dx तो फर्स्ट ऑर्डर है बिकॉज़ ये वन टाइम कर रहा है, ये सेकंड टाइम। एक एग्जांपल और देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप, यस सपोज दैट d2y अपॉन dx 2 है एंड प्लस 3 डॉट dy अपॉन dx का होल क्यूब आ गया प्लस xy जो भी है, ओके माय डियर, या दैट इज x आ गया इक्वल टू 9। अब देखो बेटा यहां तो d2y अपॉन dx दैट इज 2 टाइम डेरिवेटिव कर रखा है, यहां पे ओनली 1 टाइम, लेकिन यहां dy अपॉन dx दैट इज हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव ही चेक करना है। जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव होता है, जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव होता है, दैट इट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट कोएफिशिएंट दैट इज dy अपॉन dx तो 1 टाइम और दैट इज 2 टाइम, बट इसकी पावर कितनी है 3, तो इस पावर से मतलब नहीं है, आएंगे तो डिग्री कहलाएगी, व्हाट विल से अबाउट दिस डिग्री, बट हाईएस्ट कितने टाइम रहेगा बेटा 2 टाइम या 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो इसका मतलब है कि दैट इसका जो ऑर्डर आएगा भाई डियर, वो ऑर्डर कितना आएगा भैया 2, इसका ऑर्डर कितना आएगा भैया 2, बोलो यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर, ओके ऑर्डर क्लियर है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी डेरिवेटिव को दे रखा हो, किसी भी इक्वेशन में किसी भी फंक्शन में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने टाइम उसका डेरिवेटिव कर रखा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने टाइम उसका डेरिवेटिव कर रखा है, then it is called the order of differential equation. Is that clear? Okay, next देखिए भैया डिग्री। So what is the degree? What is the degree? देखो भैया, yes, what is the degree? Yes, what is the degree? देखो केस सेकंड माय डियर, व्हाट इज द डिग्री, कि डिग्री क्या होता है, व्हाट इज द डिग्री, यस डिग्री क्या होती है, देखो भैया, यस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि बेटा यस highest value of maximum coefficient of derivative, highest value of maximum coefficient of derivative, maximum coefficient of derivative, then it is called degree of differential equation my dear, differential equation, यानी कि highest value of maximum coefficient of derivative, then it is called the degree of differential equation, then it is called the degree of differential equation। देखो भैया वर्ड में ये highest value, प्लीज किस किससे करनी बेटा, then what we have to see
मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव आपको चेक करना है। अब उसकी पावर कितनी आई है, देन हाउ मेनी टाइम्स वी हैव गिवन द मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल समझ में आएगा प्लीज। जैसे d2y अपॉन एंड dx टू x ओके प्लस dy अपॉन dx टू एंड इसका होल स्क्वायर एंड प्लस के 9 x equal to 0. Suppose that right now that is differential equation. Right now that is differential equations. Right now we have to see and we have to see the maximum coefficient of derivative. First time सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव। तो मुझे बताइए कि d2y upon dx में लिखा है कि dy upon dx है, ये यहां पर है इसका ऑर्डर, यानी मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव का मतलब होता है कि ऑर्डर। तो इसका ये तो ऑर्डर क्या बेटा, ये ऑर्डर तो फर्स्ट है, फर्स्ट टाइम है, ये ऑर्डर क्या बेटा इसका टू टाइम है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव दिस या दिस मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव का मतलब है कि दैट इट मींस हाउ मेनी टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव इन फंक्शंस वी हैव गिवन, कि उस फंक्शन में कितने टाइम्स का डेरिवेटिव कर चुके आप। तो भैया यहां तो वन टाइम है, dy अपॉन इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज सेकंड ऑर्डर। अब इस ये आ गया मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव ये आ गया। देन वी हैव टू सी हाईएस्ट वैल्यू, दैट इज ये जो d2y अपॉन dx2 है वो कितने टाइम गिवन बेटा, ओनली वन टाइम्स। दिस इज वन टाइम्स गिवन है, यानी कि ओनली आप कितने टाइम गिवन बेटा, वन टाइम्स गिवन है। इसका मतलब है कि d2y अपॉन dx2 दैट इज आपको वन टाइम्स गिवन है, d2y अपॉन dx2 ओनली आपको कितने टाइम गिवन बेटा, वन टाइम्स गिवन है। तो इसका मतलब है कि सो देयरफॉर इसकी जो डिग्री होगी, इसकी जो डिग्री होगी बेटा वो कितनी होगी माय डियर, 1। यानी कि मैंने यही तो कहा कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, highest value of maximum coefficient of derivative, then it is called the degree, then it is called the degree. बोलो yes or no, okay, of course, very good. अब देखो बेटा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सपोज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री, राइट नाउ दैट इज जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो एक्चुअल में डिफाइंड फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है राइट नाउ वी कैन फाइंड आउट द एनी वन कंडीशंस, यानी कि इस कंडीशंस के अंदर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो फाइंड कर सकते हैं लेकिन डिग्री फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज़ डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तभी फाइंड कर सकते हैं दैट वी कैन फाइंड आउट दैट टाइम इट शुड बी डिफाइंड। अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड फॉर्म में है तो ही आप उस कंडीशन में दैट टाइम यू कैन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज यू कांट फाइंड आउट, अदरवाइज आप फाइंड नहीं कर सकते। व्हाई, बिकॉज़ क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इट मींस इसका सॉल्यूशन आपसे फाइंड होना चाहिए। तो भैया व्हाट कैन वी अप्लाई फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए आप क्या अप्लाई कर सकते हो, तो दैट इज वी हैव टू डू इंटीग्रल। आपको क्या करना बेटा उसका इंटीग्रल, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपको सोल्व करना होता है डियर तो उसका इंटीग्रल आपसे होना चाहिए। आई मीन उसका प्रॉपर्ली इंटीग्रल अप्लाई हो रहा है तो दैट इट मींस यू कैन फाइंड आउट द डिग्री दैट टाइम। यानी कि अगर डिफाइन बोले तो कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल आप कर सकते हो बेटर कंडीशंस में, तो भैया वो डिफाइन है तो उसका मतलब है कि आप उस कंडीशन उसकी डिग्री फाइंड कर सकते हो। इज इट क्लियर? सो प्लीज देखिए आप 9.1 पाई माय डियर, कम ऑन द टॉपिक 9.1। यस बहुत इजी है। यस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए प्लीज। Then d4y upon dx power 4 and plus sin y triple dash equal to 0। अब देखो भैया इसका मतलब है कि राइट नाउ दैट इज इसका ऑर्डर कितना बेटा, इसका ऑर्डर कितना है 4 है, बट डिग्री एक्चुअल में क्या है कि यहां पर डिफाइन नहीं है, बिकॉज क्योंकि साइन का जो एंगल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव आ रहा है तो राइट नाउ यहां पर आप इसका इंटीग्रल अप्लाई नहीं कर सकते, तो डिग्री आप लिखोगे माय डियर नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या लिखोगे बेटा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं तो ही उसकी डिग्री डिफाइन होती है, अदरवाइज नॉट डिफाइंड। क्योंकि साइन का जो एंगल है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव है, तो वी कांट फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर देखिए प्लीज आप थर्ड, ये आ गया ds अपॉन dt की होल पावर माय डियर 4 एंड प्लस 3s एंड डॉट d2s अपॉन dt to 2 इक्वल टू 0।
इसका मतलब है कि माय डियर देखिए प्लीज, अगर आपके पास ds by dt तो हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव्स का ये है कि ये यानी ये है, बिकॉज़ 2 टाइम यहां कर रखा है तो राइट ऑफ दैट इज ऑर्डर, तो कितना आएगा माय डियर्स का 2। अब जो जहां से ऑर्डर डिफाइन होता है ये हो गया। अब आपको फाइंड करना बेटा डिग्री, क्या फाइंड करना बेटा डिग्री। तो डिग्री में क्या होता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, तो मुझे बताइए कि मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव ये है कि ये है, यहां तो ऑर्डर कितना बेटा 2 है और यहां ऑर्डर कितना बेटा 1, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, तो ये कितने टाइम आएगा बेटा 1 टाइम, तो डिग्री कितनी होगी 1, बोलो दैट इज आंसर। Okay my dear friends, so please this time requesting you try to understand and you try to do all questions of 9.1, so to all serious students, or please subscribe to my channel, this time requesting you, okay best of luck.